ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. صدق محمد. بہت پرانی گفتگو نہیں کرنی ہے کیونکہ آج چہلم کا دن ہے. بہت مختصر گفتگو اور ذہن تمام. جیسا کہ پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھا جائے، دنیا کے گوشے گوشے میں مولا حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. اس ذکر کی خاصیت کیا ہے؟ کیوں کسی غیر ہندو بھائی سے پوچھا جائے، کسی اور برادری کا ہو، اس سے سوال کیا جائے کہ کیا تم مولا حسین کو جانتے ہو؟ کیا امام حسین علیہ السلام کو تم جانتے ہو؟ وہ بے ساختہ کہے گا جی بالکل میں جانتا ہوں. مولا حسین کا ذکر ہوتا ہے، مولا حسین کی عزاداری ہوتی ہے. مولا حسین کی بہت فضیلتیں ہیں. اگرچہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو مولا حسین کی اتنی فضیلتیں آپ کو ملیں گی کہ دنیا کے جتنے درخت ہیں اگرچہ ان کو کاٹ کر اور جتنی بھی سیاحیاں ہیں اس دنیا میں کاٹ کر مولا حسین کی فضیلت کو لکھنا چاہے تو انسان مولا حسین کی فضیلت لکھ نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا. عزیزان محترم، وہ ہے مولا حسین. ایک واقعہ انشاءاللہ رب مصائب، مولا حسین کی فضیلت کیا ہے اور جناب سیدہ کی صداقت کیا ہے. عزیزان محترم، ایک مرتبہ عید کی چاند رات آئی اور جیسے ہی عید کی چاند رات آئی، مدینے کے سارے بچے مادر گرامی کی خدمت میں. مادر گرامی کل عید ہے، ہم نیا لباس پہنیں گے. وہی حسنین کریمین ہیں. ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے اماں کے پاس آئے. آنے کے بعد سوال کیا: مادر گرامی کل عید ہے، مدینے کے سارے بچے نیا لباس سے وطن کریں گے. مولا حسین کی فضیلت اور جناب سیدہ کی صداقت کو اس میں بیان کیا گیا ہے. بہت توجہ. کل عید ہے، مدینے کے سارے بچے نیا لباس سے وطن کریں گے. مادر گرامی کیا ہم نیا لباس نہیں پہنیں گے؟ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا جیسے ہی حسنین کریمین نے سوال کیا، فوراً جناب سیدہ نے کہا کل تمہارے کپڑے درزی لے کر آئیں گے. تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں. عزیزان محترم، جیسے ہی یہ کہا، تاریخ نے لکھا نہ کوئی درزی تھا نہ کپڑا تھا، کچھ نہیں تھا. جناب سیدہ نے کہہ دیا اور جیسے ہی یہ کہا حسنین کریمین چلے گئے. جیسے ہی جانا تھا جناب سیدہ نے مصلی عبادت کو بچھایا. مصلی عبادت کو بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کی. فوراً
जनाब सैयदा ने दुआ की। अब इससे मालूम होता है कि अगरचे हमारे अंदर हमारे पास कोई परेशानी हो तो हमको दूसरे के दर पर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम परवरदिगार की बारगाह में जाकर हम परवरदिगार से इस्तिग़ासा करें। फौरन जनाब सैयदा ने मुसल्ला इबादत को बिछाया और जैसे ही मुसल्ला इबादत को बिछाया 2 रकात नमाज अदा की। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जैसे ही दुआ की, दुआ बाबे जाबत से टकराई, फौरन दुआ कबूल हुई। जिसके सदक़े में दुआ कबूल होती हो, अगरचे वो दुआ के लिए हाथ बुलंद करे तो अल्लाह दुआ क्यों ना कबूल करेगा। अब जैसे ही दुआ कबूल हुई, फौरन जिब्राइल ने हुक्म दिया। जिब्राइल ने कहा, फरिश्ते थे, देख रेख करने वाले थे, 2 लिबास ले जाओ जन्नत से। अब जैसे ये कहना था, एक मर्तबा कोई आम आदमी नहीं थे, 2 ऐसे फरिश्ते थे जो जन्नत के देख रेख करने वाले थे। अब जैसे ही हुक्म हुआ, फौरन 2 फरिश्तों ने हसनैन का लिबास लिया। जैसे ही चले, फौरन जनाब जिब्राइल ने रोका, कहा रुको, जा तो रहे हो अदब से, एहतराम से, क्योंकि तुम उस दरवाजे पर जा रहे हो कि जिस दरवाजे पर रसूल सुबह शाम आकर सलाम किया करते हैं, अस्सलामु अलैका अहलन नबुव्वा व मादिनुर रिसाला। फौरन जैसे ये कहा, एक मर्तबा फरिश्ते कपड़ा लेकर आगे बढ़े, लिबास लेकर आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़ना था, फौरन जिब्राइल ने रोका, कहा रुको, देखो जा तो रहे हो, जाने के बाद ये मत कहना कि मैं जन्नत का देख रेख करने वाला हूँ, मैं जन्नत का देख रेख करने वाला हूँ। नहीं, जाने के बाद क्या कहना, कहा देखो, जाना अदब से, एहतराम से दब्कुल बाप करना, दब्कुल बाप करने के बाद कहना, अना खय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ, हसनैन का दर्जी हूँ, लिबास हसनैन लेकर आया हूँ। फौरन फरिश्ते आए, आने के बाद दब्कुल बाप हुआ, और जैसे ही दब्कुल बाप हुआ, एक मर्तबा हसनैन करीमैन ने लिबास दिया। अब सवाल करने वाले ने सवाल किया कि साहब ये कैसे हो सकता है कि एक तो जन्नत मंगवाए, दूसरे जन्नत से लिबास आए, और जन्नत से लिबास फरिश्ता लेकर आए, ये कैसे हो सकता है। एक नबी थे जनाबे आदम, जब अल्लाह ने जनाबे आदम को रूए जमीन पर भेजा तो लिबास उतरवा लिया। अब ये है हसनैन करीमैन, फजीलत देखे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, और जनाब सैयदा की सदाकत देखिए। अब ये है हसनैन करीमैन जो कि जन्नत से लिबास आ रहा है। फौरन एक मर्तबा सवाल करने वाले ने सवाल किया, साहब ये कैसे हो सकता है, एक तो जन्नत से लिबास आए, दूसरे फरिश्ते लेकर आए, दर्जी बनकर आए। अब जैसे ये कहना था, फौरन जवाब दिया। क्या जवाब दिया कि देखो, जब अल्लाह ने जनाबे आदम को रूए जमीन पर भेजा, तब अल्लाह की मर्जी थी, तब अल्लाह की शरीयत थी। लेकिन जब हसनैन करीमैन ने लिबास मांगे, तब अल्लाह की मर्जी नहीं थी, अल्लाह की शरीयत नहीं थी, बल्कि हसनैन के बाबा ने शबे हिजरत पैगंबर के बिस्तर पर सोकर अल्लाह की मर्जी को खरीद लिया। अब शरीयत इनकी, अब ये चाहे तो जाकर लिबास पहने, चाहे तो मंगवा कर लिबास पहने। ये है जनाब सैयदा की सदाकत और हसनैन करीमैन की फजीलत। अज़ीज़ान मोहतरम, आप खुद गौर फिक्र करें कि जिसके लिए जन्नत से लिबास आते हों, जिसके दर पर फरिश्ता दर्जी बनकर आता हो, उस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत क्या होगी। बस अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने ज़हमत तमाम की। आज चेलन का दिन है, वक्त नहीं है, बहुत मुख्तसर साहब आपकी ज़हमत तमाम। अज़ीज़ान मोहतरम, हम किसका चेहरा करने के लिए बैठे हैं, हम उसका चेहरा करने के लिए बैठे हैं कि जब ये असीरान करबला 11 मुहर्रम को असीर कर लिया गया,
जब कोई बीबियां रोना चाहती थी, गिरिया करना चाहती थी, तो एक जालिम आगे बढ़ता था, ताजियाने लगाता था। जब कोई बीबी रोना चाहती, एक मर्तबा एक जालिम आगे बढ़ता था, ताजियाने लगाता था, धुएं बरसाता था, तमाचे मारता था। अज़ादारा में मजलूम करबला एक मर्तबा 11 मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई, और जैसे ही 11 मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई, सारी बीबियों को ऊंट पर बैठाला गया। लेकिन उन्हीं बीबियों में एक बीबी का तज़किरा मिलता है जिसका नाम जनाब सकीना है। कौन सकीना? वो सकीना कि जिस पर तमाचों के निशान, जिसके ऊपर इतने मजालिम ढाए गए कि करबला से कूफा, कूफा से शाम, इस बच्ची का रुखसार तब्दील होता रहा, रंग बदलता रहा। अज़ीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा जैसे ही 11 मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई, सारी बीबियों को ऊपर बैठाया गया। एक बीबी जनाब सकीना, इस बीबी के साथ वो जुल्म हुआ कि तारीख ने बयान किया कि एक मर्तबा जनाब सकीना को ऊंट की नंगी पुश्त पर बांध दिया गया। ए अजीजों, आपने ऊंट को देखा है ना, जब ऊंट चलता है तो उसकी पुश्त कभी आगे जाती है, कभी पीछे आती है। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। सिवाय मजलूम करबला के लीजिए अज़ादारों, एक मर्तबा जनाब सकीना को ऊंट की नंगी पुश्त पर बांध दिया गया। जब ऊंट चलता था तो जनाब सकीना गिर जाती थी, जब ऊंट चलता था तो जनाब सकीना गिर जाती थी। कई बार जनाब सकीना गिरी है। एक मर्तबा चलते चलते ये काफिला सहरा पर पहुंचा, और जैसे ही सहरा पे पहुंचना था, एक मर्तबा जनाब सकीना फिर ऊंट की बुलंदी से गिर गई। लीजिए अज़ीज़ान मोहतरम, गज़ब हो गया। एक मर्तबा जैसे ही जनाब सकीना गिरी है, जिस पर सरे हुसैन था वो नेज़ा जमीन में गड़ गया, आगे नहीं बढ़ रहा था। ए अज़ीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा शिब्र लहराता हुआ ताज़ियाना नेज़े के करीब नहीं लेके जाता, बल्कि मेरे बीमार इमाम सज्जाद के पास आके कहता है, ऐ सज्जाद, अपने बाबा से कह दो कि वो आगे बढ़ जाए, वरना मैं ताज़ियाने से असियत दूंगा। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। सिवाय मजलूम करबला के एक मर्तबा ये कहना था, एक मर्तबा मेरा बीमार इमाम अपने हथेलियों टेड़ियों को संभाले हुए एक मर्तबा नेज़े के करीब आके कहते, बाबा आप आगे क्यों नहीं बढ़ते, बाबा आगे बढ़ जाइए, ए बाबा आगे बढ़ जाइए। लीजिए अज़ीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा सरे हुसैन से आवाज आई, ए बेटा सज्जाद, मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं, मेरे सीने पर सोने वाली सकीना सहरा में कहीं गिर गई। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। सिवाय मजलूम करबला के लीजिए अज़ादारों, जैसे ही ये सदा जनाब ज़ैनब के कानों में गई, जनाब ज़ैनब ने अपने को ऊंट की बुलंदी से गिराया। सहरा में आवाज देती जाती है, ए बेटी सकीना, आवाज तो कोई आवाज नहीं, ए बेटी सकीना कहाँ हो, कोई आवाज नहीं हुई। चलते चलते एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने एक अजब मंजर देखा। एक नकाबपोश बीवी है जो सकीना को आगोश में लेकर प्यार कर रही है। एक मर्तबा उस बीवी के पास पहुंचती है जनाब ज़ैनब ने सवाल करना शुरू किया, ए बीबी, आप कौन हैं जो इस बच्ची को प्यार कर रहे हैं? क्योंकि 10 मुहर्रम के बाद जिसने इसको पाया है, किसी ने तमाचे मारे हैं, किसी ने ताज़ियाने लगाए हैं, किसी ने कुंडे नोचे हैं, आप कौन हैं जो इस बच्ची को प्यार कर रही हैं? ए अज़ीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब का इसरार बढ़ा। ए अजीजो, जनाब ज़ारा ने नकाब को पलटा, ए बेटी ज़ैनब, मैं तुम्हारी अम्मा। जनाब ज़ैनब एक मर्तबा अम्मा से लिपट गई, बयान करना शुरू किया, ऐ अम्मा तब नहीं आई, अरे जब मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, ऐ अम्मा तब नहीं आई, अरे जब अब्बास के बाजू कलम हो गए, ऐ अम्मा तब नहीं आई, अरे जब अली अकबर के सीने में बर्छी लग गई, ऐ अम्मा अरे तब नहीं आई, अरे जब सुषमा मुजाहिद का गला छिप गया,
اے اماں ارے تب نہیں آئی جب ہمارے خیمے جگا دیے گئے، اے اماں ہماری ردائیں چھین لی گئی۔ ایک مرتبہ بیان کرتی جاتی ہے جناب زینب، ایک مرتبہ انہی منظر میں سے ایک منظر بیان کیا، ایک مرتبہ بیان کرتے کرتے کہا اے اماں تب نہیں آئی جب حسین کا سار تن سے جدا ہو رہا تھا، نیچے آتا تھا روزہ تک ہو گیا۔ ایک مرتبہ جیسے یہ کہنا تھا اے عزیزو، جناب زہرا نے کہا اے بیٹی زینب تو 70 قدم کی دوری لے زینب یہاں پر تھی، حسین کا سار میری آغوش میں سبو رہا تھا، میں آواز دیتی رہی اے شیر خنجر روک لے، ارے لیکن شمر کا خنجر نہیں رکا، حسین کا سار تنزیل انا للہ و انا الیہ راجعون، عظم قضائی و تسلیم لامرہ، ماتم حسین۔